नमस्कार दोस्तों। अब प्रैक्टिस सेट 38 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। ओके, यहाँ पे 5 वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज इसका रिलेशन है नंबर ऑफ वर्कर्स and number of days. Calculate here. Very simple. First is given, second given, and third. 3 terms are given here. Okay, देखो 5 workers take 12 days. 5 workers take 12 days. Okay. How many days would 6 workers take? Number of workers 6 है, तो how many days taken by them to complete the work? That is, suppose that let x. और दूसरा एग्जाम्पल है 15 वर्कर्स है, तो उनको कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने के लिए? अज्यूम दैट y. ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी बात ध्यान में लेना जरूरी है। 5 वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यदि मैं वर्कर्स बढ़ा दूं तो मुझे दिन कम लगेंगे कंप्लीट काम करने में। यदि मैं वर्कर्स कम कर दूं तो मुझे डेज ज्यादा लगेंगे। यहां पे सीधी बात है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो मैं यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स, नाउ नंबर ऑफ वर्कर्स and number of days taken by them to complete the work in inverse proportion. Inverse proportion. As example is in inverse proportion, then then product is constant. Okay, therefore we can write here first 6 into x is equal to 5 into 12. क्यों लिखा? As inverse proportion, direct proportion, ratio is constant. Inverse proportion, product is constant. ये बात ध्यान में लेना है। As inverse proportion, then product is constant. As direct proportion, ratio is constant. Product किसका करेंगे? Number of workers and number of days का. Okay, then simplify here. Divide by 6 on both sides. 6, 12. It cancel. That is x is equal to 5 to 10. यहाँ पे 10 days लगेंगे. Okay, 10 days. Similarly, we can solve or we can write the properly this example. We can write number of workers. How many days would 6 workers take? 6 workers take 10 days. 6 workers take
10 days, 10 days to complete the work, to complete the work. Okay. Similarly, we can find here second point. Similarly, we can find 15 into y is equal to 5 into 12. ओके क्यों लिखा, क्या वजह है, क्या रीजन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसके लिए प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. कीप इन योर माइंड माय डियर फ्रेंड्स. We can find the value of y. Therefore, this 15 goes towards RHS. It becomes divide. We can write here y is equal to 5 into 12 divided by 15. Then simplify here. 5 ones are 5, 5 threes are 15. 3 ones are 3, 3 fours are 12. Okay, then y is equal to 4 days. Finally, we can write in proper. How many days would 15 workers take? 15 workers take 15 workers take 4 days to complete the work. ऐसा है दोस्तों, एकदम इजी है, बहुत बेस्ट है. तो ध्यान में लो, एज नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस डेज आर डिक्रीजेस. देखो यहाँ पे 12 डेज है, यहाँ पे 10 डेज है. यहां से मैंने और नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर दिए तो मुझे डेज अभी 4 लगे, 10 लगे तो यहाँ पे 4 लगे. मतलब increases, days are decreases. Therefore, the given example is an inverse the work and inverse work and inverse proportion. Okay, write down. Thank you. नमस्कार दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. मोहन राव took 10 days to finish a work, reading 40 pages every day. Every day 40 पेजेस रीड करने के बाद 10 डेज में बुक फिनिश होता है. मतलब हर दिन 40 पेजेस रीड करने के बाद मोहन राव 10 डेज में बुक रीड करना कंप्लीट करता है. हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश 8 डेज. यदि वो बुक 8 डेज में कंप्लीट करना है तो पेजेस बढ़ाना पड़ेंगे. मतलब यहां पे डेज कम किए. इफ डेज आर डिक्रीजेस देन नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीजेस. ओके, डेज कम करना है, कम दिन में किताब कंप्लीट करना है तो पेजेस बढ़ाने पड़ेंगे. मतलब गिवन एग्जांपल इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. Therefore, we can write here first the table number of days. Number of days to finish. Number of days to finish a book. Okay. And reading pages every day. Number of pages. Number of
pages read or reading every day. ओके, तो यहां पे ये बात ध्यान में लेना जरूरी है. प्लीज अटेंशन. नंबर ऑफ डेज टू फिनिश अ बुक. यदि यहां पे 10 डेज लिए, 10 डेज लिए तो 40 पेजेस एवरी डे रीड करने पड़ते हैं, तो बुक कंप्लीट हो जाता है. हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड? हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज x पेजेस. फिनिश इट इन 8 डेज. 8 दिन में यदि बुक कंप्लीट करना है, 8 डेज में फिनिश बुक करना है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितना रीड करना पड़ेगा? एक बात ध्यान में लो यहां पे. यदि नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, देन नंबर ऑफ पेजेस रीडिंग एवरी डे इंक्रीजेस. Therefore, we can write here number of days to finish a book. Okay, then number of pages and number of pages reading every day are an inverse proportion. As example is an inverse proportion, then product is constant. That is 8 into x is equal to 10 into 40. We can find the value of x, therefore this 8 goes towards RHS. Divide by 8 on both sides. Okay, this 8 get cancelled. 8 ones are 8, 8 5s are 40. That is x is equal to 10 multiplied by 5, that is 50. Okay, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 50. 50 पेजेस रीडिंग एवरी डे. यहाँ पे लिखेंगे 50 पेजेस रीड एवरी डे. ओके, प्रॉपर फॉन्ट में लिखेंगे. ओके, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड? 50 पेजेस. 50 pages must he read in a day to finish. In a day to finish it in 8 days. This is the फाइनल आंसर. राइट डाउन और स्क्रीनशॉट. बहुत इजी है दोस्तों, सिर्फ एक बात ध्यान में लेना है. नंबर ऑफ इंक्रीजेस, देन पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस रीडिंग इंक्रीजेस एवरी डे. ये बात ध्यान में आ गई तो एग्जाम्पल बहुत इजी है. नमस्कार दोस्तों, अब इस एक वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे. मेरी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. मेरी का साइकिल चलाने का जो स्पीड है वो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर. ओके, और हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे. उसका डिस्टेंस है आंट का घर का, वो है 12 किलोमीटर.
यहाँ पे किलोमीटर यूनिट लिखता हूं। तो टाइम, स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला मालूम है। ओके, स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला ध्यान में रखना जरूरी है। तो उसे x आवर लगेंगे ऐसा अज्यूम करेंगे। ओके, हाउ लॉन्ग विल शी टेक इफ शी साइकल्स एट द स्पीड। यदि उसने 4 किलोमीटर पर आवर साइकिल चलाई, स्पीड से चलाई, डिस्टेंस उतना ही है, तो उसे टाइम कितना लगेगा? सपोज दैट y टाइम लगेगा। ओके, तो यहां पे एक बात ध्यान में लो, यदि मैंने स्पीड कम कर दिया तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब यहां पे स्पीड एंड टाइम टेकन बाय सेम distance, time taken by same distance are in inverse proportion. ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसके लिए यहां पे रेशियो इज कांस्टेंट, देयरफॉर 6/4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला मालूम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्पीड है फर्स्ट कंडीशन का, यहाँ पे 2 कंडीशंस है, सीरियल नंबर लिखेंगे। 2 कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में है, ओके, इफ स्पीड है 6 इंटू टाइम है x इज इक्वल टू 12। ओके, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर दिस 6 goes towards RHS, it becomes divide, this 6 get cancelled, that is x is equal to 6 2s 12। ओके, तो x आवर 2 आवर लगेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में लेना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन हो गई, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस which is 12 किलोमीटर। ओके, इफ मेरी बॉय है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय cover the distance, that is time is equal to 2। okay, second condition, if speed is equal to 4, if speed equal to 4 kilometer per hour, then यहाँ पे बात दी है, distance is equal to, then time निकालना है। ओके, फार्मूला सेम यूज करेंगे, स्पीड ओके, तो यहां पे स्पीड है 4 इंटू टाइम 1। ओके, 4 divided by 4 on both side, y is equal to 4 get cancel, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 hour। ओके, तो लास्ट में आंसर यहाँ पे लिखेंगे
दोस्तों, या क्या है, स्पीड is equal to 4 kilometer per hour. Therefore, time taken by the same distance, that is 12 kilometer, is equal to 3 hour लगेंगे। इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। प्लीज राइट डाउन और स्क्रीनशॉट। थैंक यू दोस्तों। अब एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल। गवर्नमेंट वेयर हाउस में 4000 पीपल के लिए ग्रेन्स 30 days तक यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट 6000 पीपल। तो 6000 पीपल को जब वो ग्रेन देंगे तो कितने दिन तक चल सकता है, मतलब कितने दिन तक दे सकते हैं। ओके, तो यहां पे एक बात ध्यान में लो, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पीपल्स, ये दो क्वांटिटी यहां पे दी हुई है। ओके, ध्यान में लो दोस्तों, बहुत इजी है। ओके, तो यहां पे दो बातें ध्यान में लो। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस 30 days फॉर 4000 पीपल। 4000 पीपल के लिए 30 डेज चलेगा, मतलब 30 डेज तक दे सकते हैं। यदि पीपल की नंबर बढ़ा दी, पीपल की संख्या बढ़ा दी, मतलब 6000 हो गए, तो यहां पे डेज कम लगेंगे। यहां पे डेज एक्स अज्यूम करते हैं। एक बात ध्यान में लो, यहां पे यदि नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीजेस then number of days decreases. Okay, therefore given example is an inverse proportion and given example is an proportion, then product is constant. Therefore, x into 6000 is equal to 30 into 4000. ओके, प्रोडक्ट करेंगे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पीपल्स का प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पीपल्स का प्रोडक्ट। यहां पे x की वैल्यू निकालने की है, तो 6000 डिवाइड करना पड़ेंगे ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहां पे 6000 गेट कैंसल। ओके, यहां पे एक बात लिखना पड़ेगी, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, ओके, तो देखो यहां पे x है, x यहां पे क्या किया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, दिस 3 zeros आर कैंसल, 3 zeros आर कैंसल। ओके, 1 जा 3, ओके, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो यहां पे रिमेनिंग टर्म्स है 10 इंटू, दैट इज x इज इक्वल टू 20 डेज। आंसर ए आएगा दोस्तों। फाइनली आंसर यहां पे लिखेंगे, फाइनली आंसर आएगा क्या, नंबर ऑफ पीपल्स इफ is equal to 6000, then number of days
number, how many days will it last? Number of days last कितने 20 days, 20 days तक चलेगा, ये बात ध्यान में लो। ओके, बहुत इजी है दोस्तों, प्लीज राइट डाउन और स्क्रीनशॉट। दोस्तों यदि वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो न्यू वीडियोज बनते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू।